جو کل پارلیمنٹ میں اگر ہوا ہے اور اگر وہ آئے ہیں جس طرح میرے کولیگز بتا رہے ہیں تو اس کا بھی ایکشن لینا ہے. ہم نے اس پہ اوپر خاموش نہیں رہنا. 2014 میں نے خود FIR کٹوائی تھی اور آج بھی اگر کٹوانی پڑی تو یہاں جو پولیس کا عملہ بیٹھا ہے میں وہاں پہ FIR کٹواؤں گا ان لوگوں کے نام جن لوگوں نے اس میں وہ کیا ہے. اسپیکر قومی اسمبلی کا PTI قیادت کو رہا کرنے کا حکم. ID اسلام آباد کی سرزنش، گرفتار اراکین اسمبلی کے پروڈکشن آرڈر بھی جاری. اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کی علی محمد خان، اعظم نذیر تارڑ، نوید قبر، محمود خان اچکزئی سے چیمبر میں مشاورت. اسپیکر قومی اسمبلی کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ ہاؤس میں جو کچھ ہوا اس پر چپ نہیں رہیں گے. یہ پارلیمنٹ پر تیسرا حملہ ہے. ہمیں کہیں نہ کہیں سٹینڈ لینا ہوگا. واقعے کے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کی جائے گی. صوبے کا چیف منسٹر جو ہے للکار رہا ہے، فیڈریشن کو للکار رہا ہے. 15 دن کا انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے رہا کرانا ہے بانی PTI کو. آج دوسرا دن ہے، 13 دن رہ گئے ہیں. ہم انتظار کر رہے ہیں کہ وہ آئے لشکر لے کے. وردی والوں کے پیروں میں بیٹھ کر ڈکی میں بند ہو کے گیا تھا باجوے کو ملنے. انہوں نے زمین بیچے ہوئے، یہ زمین فروش ہیں. قومی اسمبلی کے اجلاس میں حکومت اور اپوزیشن اراکین میں گرما گرم بحث. وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا تھا علی امین گنڈا پور لشکر لے کر آئے، ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں. انہوں نے 15 روز میں بانی کو رہا کرانے کا بولا. آج 2 دن گزر گئے ہیں. PTI قیادت کی گرفتاریاں اتوار کے جلسے میں نازیبہ تقاریر کا رد عمل ہیں. جلسے میں وفاق اور پنجاب پر حملے کی بات کی گئی. بانی PTI گاڑی کی ڈگی میں بند ہو کر جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ سے ملنے گئے. کیا پاکستان کا وجود کسی ایک شخص سے جوڑنا درست ہے؟ اگر کوئی پنجاب پر حملہ آور ہونے کا بولے گا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ خواجہ آصف کی تقریر کے دوران اپوزیشن کا شور شرابہ. آپ نے پاکستان کی سالمیت پہ حملہ کر دیا. آپ نے ایک ادارے کے خلاف اتنی بڑی سازش کر دی. یہاں پہ استعفے دیے گئے، 2 اسمبلیوں کو ڈیزالو کیا گیا. اس وقت تو جمہوریت کوئی نہیں تھی. جو اس وقت تو 25 کروڑ عوام کی نمائندگی کدھر گئی؟ ان کے حقوق کے لیے انہوں نے الیکٹ اس لیے کیا تھا آپ کو کہ آپ جا کے استعفے دیں اور گھر جائیں اور ڈی اسٹیبلائز کریں. PTI کے جلسے میں جس قسم کی تقریر ہوئی، کیا کسی نے مذمت کی؟ تحریک انصاف نے پاکستان کو اس مقام تک پہنچا دیا، میری استدعا ہے کہ رک جائیں. وفاقی وزیر رانا تنویر کا قومی اسمبلی میں خطاب. بولے PTI نے گالی گلوچ کے کلچر کو فروغ دیا ہے. PTI نے پاکستان کی سالمیت پر حملہ کیا. ان کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے. آج ہم IMF کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑے ہیں تو اس کی وجہ PTI ہے. اختلاف رائے یہ نہیں ہوتا کہ میں ہوں تو پاکستان ہے. ان کا کہنا تھا کہ یوٹیلیٹی سٹورز کو بند نہیں کیا جائے گا. جب ہم ان کو سمجھاتے تھے کہ تھوڑا سا سنبھل کر چلیں، نفرت کے بیج بوئے گئے ہیں. ہم نے تو تب بھی ان کو سمجھایا تھا کہ وقت ایک سا نہیں رہتا. جو سیاست کے اندر روایات ڈالی، یہ کبھی نہیں ہوا تھا کہ خواتین کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جاتا. ہم ان کو سمجھاتے تھے نفرت اور انتقام کی سیاست نہ کریں. لیڈر کو چھڑوانے کی بات کرنے والے خود غائب ہو گئے. وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا قومی اسمبلی میں خطاب. بولے خواتین کو کبھی سیاسی انتقام کا نشانہ نہیں بنایا. انہوں نے ماضی سے کچھ نہیں سیکھا. سیاست میں جو روایات انہوں نے ڈالی اس کی کہیں مثال نہیں ملتی. کل جو واقعہ ہوا ہے اس کی کوئی بھی اس کی تائید نہیں کر سکتا. ہم بھی اس کی جو ہے وہ مذمت کرتے ہیں اور آپ سے چاہیں گے کہ آپ اس کے اوپر جو ہے وہ اپنا رول پلے کریں. جب آپ جنگ شروع کر دیتے ہیں تو پھر اس کا آؤٹ کم تو پھر پاگل پن کا آؤٹ کم تو پاگل پن ہی ہے. پھر نہ کل کے واقعے سے ملک کو فائدہ ہوا ہے اور نہ اتوار والی تقریر سے اور نہ جو آپ کچھ کر رہے ہیں اس سے ملک کو فائدہ ہو رہا ہے. ملک کو نہیں فائدہ ہو رہا. PTI والے خدا کے لیے اپنے پاگل پن کو روکیں. کل جو کچھ ہوا اس کی مذمت کرتے ہیں. MKM رہنما مصطفیٰ کمال کا قومی اسمبلی کے اجلاس میں اظہار خیال. بولے جب کوئی جنگ شروع ہوتی ہے تو پھر اس کا کوئی نتیجہ بھی آتا ہے. مان لیا PTI مقبول جماعت ہے، لیکن علی امین گنڈا پور کی تقریر کون سی جمہوری تھی؟ جب PTI اقتدار میں تھی تو کیا ان کا رویہ جمہوری تھا؟ یہاں پر کوئی بھی فرشتہ نہیں، سب کی اپنی اپنی تاریخ ہے.
आर्टिकल 6 लगाना है तो इन पे लगाओ। हमारे इख्तिलाफ राय हैं सर, नो वन हैज द राइट कि मेरे वो इस आईनी हक को कि हम सिटिंग इन द पार्लियामेंट वो उसको मजरू किया जाए। इस ऐवान के मुअज़्ज़ज़ अराकीन का हम तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते तो फिर मुझे नहीं पता जनाब स्पीकर कि आपने इसका क्या हल निकालना है। अली मोहम्मद खान की पीटीआई क़यादत की गिरफ्तारी की मज़म्मत। कौमी असम्बली के इजलास में बोले, पार्लियामेंट हाउस में जो कुछ हुआ वो इंतहाई काबिल मज़म्मत है। पार्लियामेंट का तकद्दुस पामाल किया गया है। सिर्फ पीटीआई अरकान असम्बली को गिरफ्तार नहीं किया गया, ये यहाँ बैठे हुए सबकी गिरफ्तारियाँ हैं। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल साहबजादा हामिद रजा का कहना था कि हमारे सियासी इख्तलाफात चलते रहेंगे मगर इस पार्लियामेंट का तकद्दुस सबसे अहम है। महमूद अचकज़ई बोले, जिस अंदाज में जमहूरी इदारों पे हमला हुआ वो अफसोसनाक है। जिस अंदाज में जमहूरी इदारों पे हमला हुआ, पार्लियामान और आइन की बेइज्जती की गई, हम आइन के साथ खड़े होते हैं। हम किसी को ये इख्तियार नहीं देंगे कि वह हमारे जमहूरी इदारों से खेल खेले। मुस्लिम लीग नून के सरबराह नवाज शरीफ का सियासी महाज पर मुतहर्रिक होने का फैसला। पार्टी राय के मुताबिक नवाज शरीफ मुल्क गिर दौरे करेंगे। सबसे पहला दौरा बलूचिस्तान, फिर सिंध और खैबर पख्तूनख्वा जाएंगे। नवाज शरीफ बलूचिस्तान में पार्टी को असर नौ मुतहर्रिक करने के लिए तंजीमें नौ करेंगे। पार्टी के मुखलिस और देरीना साथियों को आला तंजीमी ओहदे देने का फैसला। इस्लामाबाद के थाना नून में पीटीआई लीडरों के खिलाफ दर्ज मुकदमे की तफसीलात सामने आ गई। एफआईआर में पीटीआई के 60 से ज्यादा अफराद नामजद। शोएब शाहीन और आमिर मुगल की हिदायत पर रोड ब्लॉक किया गया। डंडों और पत्थरों से पुलिस पर हमला किया गया। पीटीआई के 60 से 70 मुश्तिल अफराद हाथों में डंडे लेकर आए। मुकदमा इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट के तहत दर्ज किया गया। पुलिस पर हमले और गाड़ियों की तोड़ फोड़ की दफात भी शामिल। इस्लामाबाद जलसे में मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तार पीटीआई क़यादत की अदालतों में पेशी की तैयारियां। शहर इक़्तिदार की ज़िली अदालतों में पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी तैनात। पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौहर, शोएब शाहीन, शेर अफजल मरवत, जुबैर खान समेत दीगर को पेश किया जाएगा। पार्लियामेंट हाउस से गिरफ्तार आमिर डोगर, अवैस दरेशक, अहमद चट्ठा, सैयद शाह अहद, नसीम अली शाह और यूसुफ खान की पेशी का भी इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस वक्त दहशतगर्दों का, शर पसंदों का अड्डा है। खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला है, उसने तो धमकियां भी दे दी, उसने तो पंजाब पर लश्कर कशी की बात भी कर दी। हम जिम्मेदार सूबा हैं, हम एक हमेशा बड़े भाइयों वाला रोल। मैं कभी नहीं चाहूँगी कि मेरे केस की वजह से दो सूबे आपस में एक दूसरे के सामने खड़े हो जाएं, और ना मैं ये कभी चाहूँगी कि पंजाब पुलिस जो है वो खैबर पख्तूनख्वा हाउस के अंदर घुस जाए। लाहौर हाई कोर्ट में वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की फेक वीडियो के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने FIA को तफ्तीश मुकम्मल करने की मोहलत दे दी। समाअत 18 सितंबर तक मुलतवी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू, बोली, इनके लीडर की जुबान ही दहशत गर्दों वाली है। इस्लामाबाद में KP हाउस दहशत गर्दों का अड्डा बन चुका है। पंजाब ने हमेशा बड़े भाइयों वाला किरदार निभाया है। हम सूबों को लड़ाना नहीं चाहते, लेकिन रियासत के खिलाफ ऐसी जुबान नाकाबिले बर्दाश्त है। अली अमीन गंडापुर ने पंजाब पर लश्कर कशी की धमकी दी। रावलपिंडी अडयाला जेल में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने समाअत की। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी कमरा अदालत में पेश। वकला की अदम दस्तयाबी के बाइस रेफरेंस के आखिरी गवाह मियां उमर नदीम पर जिरह न हो सकी। अदालत ने समाअत 12 सितंबर तक मुलतवी कर दी। तोशाखाना 2 केस में बुशरा बीबी और बानी पीटीआई को नोटिस जारी। केस की समाअत 16 सितंबर को होगी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का हंगामी इजलास कुछ देर बाद होगा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने पीटीआई के अरकान को हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत जारी कर दी। रात गए KP असम्बली इजलास बुलाने का नोटिफिकेशन जारी किया गया। इजलास से कबल वज़ीर आला काबीना अरकान से भी मुलाकात करेंगे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर सुबह सवेरे पेशावर पहुंचे थे। वज़ीर दाखिला कहते हैं कि दहशत गर्दी से निपटने के लिए सबको एक होना होगा। दहशत गर्दी किसी भी शक्ल में काबिल मजम्मत है।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अवामी नेशनल पार्टी के सदर सेनेटर एमल वली खान की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर और मुल्की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। एमल वली खान ने इंसदाद दहशत गर्दी के लिए ANP की हिमायत का यकीन दिलाया। उनका कहना था कि दहशत गर्दों ने मासूम लोगों का खून बहाया, जंग में हुकूमत के साथ हैं। अदालत ने चेयरमैन नादरा को ओहदे पर बहाल कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट में चेयरमैन नादरा लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर अफसर को ओहदे से हटाने के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत। चेयरमैन नादरा की तकर्री को कलअदम करार देने का फैसला मुअत्तल। केस की समाअत जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने की। गर्मी एक मरतबा फिर जोर पकड़ने लगी। पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर के बेशतर हिस्सों में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान। लाहौर में शाम के औकात में बूंदाबांदी की पेशगोई। शहरी कायद में सुबह सवेरे पड़ने वाली फुहार और हवाएं चलने से मौसम खुशगवार। पंजाब की तारीख में पहली मौसमियाती पॉलिसी और एक्शन प्लान की तैयारी मुकम्मल। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब एक्शन प्लान और पॉलिसी का बाज़ाब्ता इजरा करेंगी। IMF ने पाकिस्तान में अपना कंट्री हेड तब्दील कर दिया। ज़रा के मुताबिक एस्टर पेरेस की जगह माहिर बिसीनी को तैनात कर दिया गया। ज़रा के मुताबिक कंट्री हेड की तब्दीली से कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी में तातुल का इम्कान नहीं। IMF के नए कंट्री हेड माहिर बिसीनी तुर्क शहरी हैं। पाकिस्तान को सितंबर के आखिरी हफ्ते तक $7 अरब के कर्ज मंजूरी की उम्मीद है। दुनिया भर में मुकीम पाकिस्तानियों ने 2 माह में $5 अरब 93 करोड़ मुल्क में भेजे। स्टेट बैंक के मुताबिक सबसे ज्यादा $1 अरब 47 करोड़ सऊदी अरब में काम करने वाले पाकिस्तानियों ने भेजे। UAE के ओवरसीज पाकिस्तानियों से $1 अरब 15 करोड़ मौसूल हुए। सालाना बुनियादों पर 2 माह में तरसीलात ज़र में 44% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। बांग्लादेश का भारत से साबिक वज़ीर आज़म हसीना वाजिद की हवालगी का मुतालबा। प्रोसिक्यूटर बांग्लादेश अबूरी हुकूमत का कहना था कि साबिक वज़ीर आज़म पर जंगी जराइम के तहत मुकदमात दर्ज हैं, उन्हें बांग्लादेश के हवाले किया जाए। शेख हसीना वाजिद मुल्क से फरार हो चुकी हैं, उन्हें वापस लाने के लिए कानूनी कार्रवाई शुरू करेंगे। बांग्लादेश का भारत के साथ मुजरिमान की हवालगी का मुआहदा है, जिस पर 2013 में दस्तखत हुए थे। तबाहाल फ़लस्तीन में इसराइली जारहियत ना रुक सकी। गजा, दिरबला और रफा समेत कई इलाकों में सहूनी फौज की कार्रवाइयाँ। गजा में इसराइली बमबारी में शहरी दिफा के डिप्टी डायरेक्टर अहले खाना समेत शहीद। सिविल डिफेंस के अब तक 83 एहलकार शहीद और 200 से ज्यादा जख्मी हो चुके। 24 घंटों में मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 50 फ़लस्तीनी लुक़्मा अजल। औरतों बच्चों समेत शोहदा की तादाद 40,200 से तजावुज़ कर गई। मगरबी किनारे पर फायरिंग से 3 इसराइली फौजी हलाक। शिमाली कोरिया में दरिया पर बंद न बनाने पर 30 साला अफसरान को फांसी दे दी गई। जनूबी कोरिया की खुफिया एजेंसी के मुताबिक 30 साला अफसरान इंतजामी उमूर पर मामूर थे। सैलाब की वजह से हजारों घर तबाह और 1500 से ज्यादा अफराद लापता हो गए थे। सरबराह शिमाली कोरिया किम जोंग उन ने तहकीकात और जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का कहा था। शिमाली कोरिया की जानिब से अभी तक इस खबर की तस्दीक नहीं की गई है। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड और खिलाड़ी भारत में सहूलियात की अदम दस्तयाबी पर फट पड़े। भारत के ग्रेटर नोएडा क्रिकेट स्टेडियम में नाक़िस इंतजामात पर सख्त तनकीद। दोबारा इस वेन्यू पर न खेलने का फैसला कर लिया। अफगान बोर्ड का कहना था कि नोएडा के वेन्यूज में सब कुछ अच्छा की यकीन दहानी कराई गई थी, मगर गुज़श्ता रोज सारा दिन ग्राउंड खुश्क होने का इंतजार किया जाता रहा, जिसकी वजह से टॉस भी न हो सका। और झारा पहलवान को दुनिया छोड़े 33 बरस बीत गए। 24 सितंबर 1960 में पैदा हुए, कम उम्री में ही बड़े बड़े पहलवानों को चारों शाने चित किया। नामवर जापानी अनोखी पहलवान को जेर करके आलमी शोहरत हासिल की। करियर में 60 से ज्यादा मुल्की और गैर मुल्की मुकाबलों में नाकाबिले शिकस्त रहे।
फन पहलवानी में आला कामयाबियों पर हुकूमत ने उन्हें रुस्तम पाकिस्तान और फ़ख्र पाकिस्तान के खुतबात से नवाजा।